Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੀ, जिन्हें च ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। यानी निजी अंतिम उपभोग खर्च परिवार खेतर दा, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च सरकार खेतर दा, कुल घरेलू पूंजी निर्माण उत्पादक खेतर दा ते शुद्ध निर्यात जेडे ने होर संसार खेतर दे। ये चार तरह दे खर्चे जेडे ने वो आपां जोड़ने ने। जेकर आपां ये चार तरह दे खर्चे जोड़ांगे तो की होएगा, क्योंकि आपां खर्च की गल कर रहे हैं, खर्चा हमेशा बाजार कीमत ते कीता जांदा है। मतलब आपां किसी भी चीज ते कितना खर्चा करदे आ वो इस गल ते निर्भर करदा है कि उनदी बाजार कीमत जिहड़ी है वो कितनी है। क्योंकि आपां जदों चार चीजां जोड़ियां सी, आपां उहदे च कुल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़िया सी। आपां क्योंकि जोड़ कुल रहे हैं तो आंसर भी की आएगा, कुल दे विच आएगा। क्योंकि विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन हाली नहीं जोड़ी तो जो आंसर आएगा वो कितने बराबर आएगा, वो अपने घरेलू उत्पादन के बराबर आएगा। मतलब अगर तुसी निजी अंतिम उपभोग खर्च, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च, कुल घरेलू पूंजी निर्माण ते शुद्ध निर्यात, ये चार चीजों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲੂੰਗਾ ਉਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ उत्पादन। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ उत्पादन, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧਨ लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ उपभोग खर्च। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 50। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
वो है 10। फिर है अपने कुल स्थाई पूंजी निर्माण जो कि है 100 रुपए का। उस तो बाद है स्टॉक विच बदलाव जो कि है 30। फिर है घिसावट जो कि है विधि। फिर है निजी अंतिम उपभोग खर्च जो कि है अपने कुल 200 दा। फिर है अपने कुल निर्यात जो कि ने 40। फिर है अपने कुल आयात जो कि ने 50 ते लास्ट है अपने कोल विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन जो कि है अपने कोल माइनस से 5। हम ध्यान रखना है कि जो दिता गया वो माइनस से दिता गया ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन। क्योंकि आप खर्चा ले रहे हैं खर्चा बाजार कीमत ते होना है क्योंकि लेना कुल है तो कुल आएगा विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन जी है जी -5 दी गई है मैंने एक बार शामिल नहीं करांगा। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा घरेलू आएगा। तो 4 चीजें पहला की जोड़ना है आपा निजी। देखो अगर उल्टे पुल्टे भी दिखते ने कोई फर्क नहीं पैदा तुसी उन्हें सीधा कर लेना है। तो पहला है निजी अंतिम उपभोग खर्च। फिर अपन जोड़ांगे सरकारी अंतिम उपभोग खर्च। हुन अगला अपन की जोड़ना है अगला पर जोड़ना है कुल घरेलू पूंजी निर्माण। देखो अपन कुल घरेलू पूंजी निर्माण दिता है उन्हें अपन दिता है कुल स्थायी पूंजी निर्माण यानी सिर्फ स्थिर वस्तुओं वाला। उन याद करो जे कुल स्थायी पूंजी निर्माण दिता है आप जो निवेश करते हैं जो पूंजी निर्माण करते हैं वो खाली आप स्थिर चीजें देता नहीं करते आप थोड़े बहुत पैसे भी देते लाने आप स्टॉक च भी लाने आप तो नाल में अपन की देता स्टॉक विच बदलाव यानी उनमें अगर कुल स्थायी पूंजी निर्माण ते स्टॉक विच बदलाव एना दोनों नु जोड़ागा डी ते ई नु जोड़ागा तो की बनेगा कुल घरेलू पूंजी निर्माण। मेरा तीसरा टॉपिक की सी तो मैं इथे नोट लिखांगा कुल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस नाम की हो जाएगा स्टॉक विच बदलाव। तो ये बन गया मेरा कुल घरेलू पूंजी निर्माण यानी निजी अंतिम उपभोग खर्च हो गया परिवार के स्तर का। सरकारी अंतिम उपभोग खर्च हो गया सरकार के स्तर का। कुल घरेलू पूंजी निर्माण हो गया उत्पादक के स्तर का। चौथा के स्तर बचा होर संसार के स्तर उन्होंने की करना है आयात ते निर्यात। तो निर्यात अपन नु दिते हुए ने तो निर्यात की होएगा जुड़नगे ते आयात की होएगा माइनस होंगे। तो बस आपा ए सारी चीजें ही लेनिया ने। और देखो ने अप्रत्यक्ष कर देता है सब्सिडी देती है घिसावट देती है या उन्हें अपन विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन देती है आपा किसी को कुछ नहीं करना बस सिर्फ आई चीजें लेनी। हुन आप पहला टोटल करते हैं निजी अंतिम उपभोग खर्च देखो कितने देता है आप तब 200 का निजी अंतिम उपभोग खर्च हो गया जो हो गया मेरा टिक लगाते रहने हैं। फिर है सरकारी अंतिम उपभोग खर्च आपया 50 का हो गया। उस तो बाद कुल स्थायी पूंजी निर्माण 100 रुपए का आपया स्टॉक विच बदलाव 30 रुपए का आ हो गया। फिर निर्यात 40 दे प्लस होने ने ते आया तो 50 दे माइनस होने ने तो आपका लिख लिया। तो हम आप पहला जोड़ लावांगे 200 250 350 380 420 420 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਗਏ आंसर आया 370।
टोटल हमेशा की तरह रीचेक करांगे 200 250 350 380 420 420 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਗਏ 370 370 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਐਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੁੱਲ घरेलू उत्पादन ये अपने को सॉल्व करके है हुन ध्यान दियो आपा आ बनाना है आ अपने को हैगा बाजार कीमत ते बनाना भी बाजार कीमत ते तो कोई चेंज नहीं चेक करो बाजार कीमत है बाजार कीमत ही बनाना है कोई चेंज नहीं हैगा भी कुल है बनाना भी कुल है कोई चेंज नहीं हैगा घरेलू है बनाना राष्ट्रीय है ता घरेलू तो राष्ट्रीय बनाना है घरेलू ते राष्ट्रीय का डिफरेंस कितने बराबर है विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन के बराबर हुन घरेलू है राष्ट्रीय बनाना है तो की करांगे प्लस करांगे विच कि विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन तो बस अपना बन गया हुन जरा ऊपर आंसर सी वो कितना सी 370 एन जपा विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन की करनी है प्लस पर अपन माइनस दी गई है तब प्लस की कर देंगे -5 यानी कि प्लस माइनस माइनस 370 जो 5 गए तब 365 जो है आंसर आ गया अपना दूसरा भी सॉल्व हो गया हुन आप आने तीसरे हुन तीसरा है अपने कोल साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हुन आप ये चीज सॉल्व करनी है उनके असर आप ऑलरेडी की सॉल्व करके बैठे हैं बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन ता जो सॉल्व कीता होया है वो बिल्कुल ऐसे थल्ले लिख लो बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन ये आप ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हैं हुन देखो अपने को हैगा बाजार कीमत है आप बनाना की बाजार कीमत ऑलरेडी अपने को है अब बनाना है साधन लागत बाजार कीमत ते साधन लागत का डिफरेंस सोचो कितने बराबर होएगा वो होएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे बराबर बाजार कीमत है साधन लागत बनाना है यानी कि करांगे शुद्ध अप्रत्यक्ष की कर देंगे माइनस कर देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो ने वो माइनस हो जाएंगे चेक करो कि तानु शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिते ही अप्रत्यक्ष कर ते सब्सिडी अलग अलग दिते ने यानी आपा हुन की करना है आपा टैक्स जड़े ने वो की करने ने माइनस यानी अप्रत्यक्ष कर की करांगे माइनस ते सब्सिडी की करांगे प्लस ए याद रखना है कि अप्रत्यक्ष कर ते सब्सिडी हमेशा उल्टा जाएंगे जे अप्रत्यक्ष कर माइनस होएगा तो सब्सिडी प्लस होएगी जे ए प्लस होएगा तो ए माइनस होएगी चेक करना चाहो तो जो साधन लागत ते बाजार कीमत का डिफरेंस कितना सी वो तो चेक कर सकते हो यानी हुन देखो हैगा सी बाजार कीमत मैं बनाना सी साधन लागत अप्रत्यक्ष कर की करते माइनस करते सब्सिडी प्लस करती यानी बाजार कीमत तो साधन लागत बन गया हैगा कुल है बनाना शुद्ध है हम कुल ते शुद्ध का डिफरेंस कितने बराबर है घिसावट के बराबर हैगा कुल है बनाना शुद्ध है घिसावट की कर देगा माइनस घिसावट की होगी माइनस हैगा राष्ट्रीय है बनाना भी राष्ट्रीय है तो कोई चेंज नहीं तो जो मैं आंसर निकाला सी वो कितना सी मेरा 365 तो 365 आंसर लिख लिया हुन बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन 365 आ गया हुन पहला तो अप्रत्यक्ष कर माइनस करो अप्रत्यक्ष कर कितने ने 3 माइनस हो गए सब्सिडी प्लस होनी है 10 प्लस हो गया फिर घिसावट खर्च आप है देखो आप है v तब v की होंगे माइनस होंगे
यानी 365 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਲੱਸ ਹੋਏ 375 30 ਤੇ ਵੀ 50 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆंसर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 325 ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ साधन लागत ਤੇ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी अपना तीसरा क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋल्व ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋल्व ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ठीक हो गया जी गल क्लियर। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ पहला उन्हें अपन एंड सॉल्व करने को किया है बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन ये पहली चीज है जो अपन सॉल्व करनी है। नंबर 2 अपने को है बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा अपन निकालना है साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो आ तीन चीज़ां जड़ियां ने वो आप सॉल्व करनी है। एना वास्ते जो अपन दिता गया है वो की है नंबर 1 अपन दिता गया है सरकारी अंतिम उपभोग खर्च जिहड़ा कि है 15। नंबर 2 अपन दिते गए ने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जिहड़े कि ने 14। नंबर 3 अपन दिता गया है शुद्ध निर्यात जो कि है -4। फिर है अपने कुल घरेलू पूंजी निर्माण जो कि है अपने कुल 20। फिर है अपने कुल निजी अंतिम उपभोग खर्च जो कि है 100 रुपए का। फिर है विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन जो कि है 40 दी। नंबर 7 पे अपन लिखता है घिसावट खर्च जो कि है 10। तो अपन दिता है हुण आपां उवें चार चीज़ां जोड़ांगे। चार चीज़ां जोड़ के की बनावांगे सब तो पहला बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन। तो चार चीज़ां केड़ियां ने 1 बाय 1 निजी अंतिम उपभोग खर्च। तो निजी अंतिम उपभोग खर्च प्लस सरकारी अंतिम उपभोग खर्च। सरकारी अंतिम उपभोग खर्च। फिर कुल घरेलू पूंजी निर्माण ये ऑलरेडी दिता हुआ है कुल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस की करना आप लास्ट शुद्ध निर्यात। तो यहां पर चार चीज़ां ऐड कर करनी है। निजी अंतिम उपभोग खर्च 100। सरकारी अंतिम उपभोग खर्च 15। सब कुछ अपने इस न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी दिता है। कुल घरेलू पूंजी निर्माण 20 प्लस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात अपन माइनस दिते गए तनु ब्रैकेट लिख लेने ता 100 115 135 135 जो 4 गए ता 131 अपना
आंसर आ गया पहला बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन, तो आ निकल गया। फिर है बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन, तो जो निकालना लिख लो, बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ये आप सॉल्व करना है। अपने को है बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन, ये अपने को ऑलरेडी है। जो है बाजार कीमत ते है, जो बनाना है वो बाजार कीमत ते है, कोई चेंजेस नहीं। जो है वो कुल है, जो बनाना है वो भी कुल है, कोई चेंजेस नहीं। जो है वो घरेलू है, जो बनाना है वो राष्ट्रीय है, मतलब घरेलू तो राष्ट्रीय बनाना है, ताकि करांगे घरेलू ते राष्ट्रीय दा डिफरेंस विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन प्लस कर देंगे, तब आपका ऊपर आंसर निकालिया 131 विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन अपन ऑलरेडी दी गई है 40, आंसर आ गया अपना 171। ये अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तीसरा साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो लिख लो साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये अपन निकालना। जो अपने को है वो लिख लो, वो है बाजार कीमत ते कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ये अपने को ऑलरेडी है। हम जो है वो बाजार कीमत है, आप बनाना साधन लागत है, तो सोचो बाजार कीमत ते साधन लागत का डिफरेंस कितने बराबर है, वो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे बराबर, तो हैगा बाजार कीमत, तो बनाना साधन लागत है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की हो जाएंगे माइनस, ताकि लिखांगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस हो गए। जे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस किते बाजार कीमत तो साधन लागत बन गया। हुन हैगा कुल है, एंड तो आ बन गया हैगा कुल है, बनाना की है शुद्ध, कुल तो शुद्ध बनाना है, तो कुल ते शुद्ध का डिफरेंस सोचो, घिसावट हैगा कुल है, बनाना शुद्ध है, तो माइनस की हो जाएगा घिसावट खर्च, तो कुल तो की बन जाएगा शुद्ध बन जाएगा। हैगा राष्ट्रीय है, बनाना भी राष्ट्रीय है, कोई चेंजेस नहीं, तो जेड़ा ऊपर आंसर आया सी 171 उन्होंने लिख लिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अपन दिखते हुए ने 14 माइनस हो गए, घिसावट खर्च अपन दिखता हुआ है 10, ये भी माइनस हो गया, ता 171 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ करते, ਤਾਂ 171 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 1 by 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ, 171 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 167, ਹੁਣ 167 ਚੋਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 147, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ थर्ड आंसर आ गया साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो इस तरह आप अपने न्यूमेरिकल जोड़े ने वो सॉल्व कर सकते हैं। ता हमेशा की तरह बेस रेडी करो, बेस रेडी करने तो बाद चेंजेस करो, चेंजेस करके जितने मर्जी न्यूमेरिकल जोड़े ने वो कर सकते। एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ਜਿਹੜੀ है वो ਆਪਾਂ ਹੋਰ कर लेने हैं ताकि होल क्लियर हो जाए। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ न्यूमेरिकल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ कीमत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन, बस आप इको ही चीज निकालनी है। उनके वास्ते जो ने आपन स्टेटमेंट दिया ने वो की है वो है कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण जिहड़ा की है 100 रुपए का। नंबर 2 विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन जिहड़ी की है -200। नंबर 3 अपने को है शुद्ध
निर्यात ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ। नंबर 4 निजी अंतिम उपभोग खर्च ਜਿਹੜਾ ਕੀ है 500 ਦਾ। फिर है सरकारी अंतिम उपभोग खर्च जो भी है 500 रुपए का। उस तो बाद घिसावट ਜਿਹੜਾ है 10 ਦਾ। फिर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो कि ने 20। उस तो बाद है स्टॉक विच बदलाव जो कि है 200 ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ बेस आएगा बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन। ता चार चीजा, पहला निजी अंतिम उपभोग खर्च प्लस सरकारी अंतिम उपभोग खर्च प्लस कुल घरेलू पूंजी निर्माण। चेक करो दिता है कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण दिता है। ता कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। अगर स्थायी पूंजी निर्माण दिता है तो स्टॉक विच बदलाव की जरूर दिता होगा। देखो स्टॉक विच बदलाव दोनों को जोड़ के कुल घरेलू पूंजी निर्माण बन गया। फिर लास्ट है शुद्ध निर्यात। आदित्य हुए ने शुद्ध निर्यात। बस आज चार चीजें ही ऐड करनी है। निजी अंतिम उपभोग खर्च 500, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च 500, कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 100 रुपए का। फिर स्टॉक विच बदलाव 200 का ते शुद्ध निर्यात 100 दे। तो आप जो 500 500 1000 1100 1300 ते 1400 1400 अपना आंसर आ गया। बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन उन्हें हमें अपन क्या किया, उन्हें अपन क्या बाजार कीमत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन। ता जो निकालना है वो लिख लो बाजार कीमत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन। ठीक है जी, ये अपन निकालना है। अपने को है बाजार कीमत ते कुल घरेलू उत्पादन। ये अपने को ऑलरेडी है आ है ए बनाना हैगा भी बाजार कीमत ते बनाना भी बाजार कीमत ते कोई चेंज नहीं हैगा। कुल है बनाना शुद्ध है। कुल ते शुद्ध दा डिफरेंस सोचो क्या होएगा घिसावट खर्च। ता हैगा कुल है बनाना शुद्ध है तो की करना है अपन घिसावट खर्च जड़ा है वो की कर देना है माइनस कर देना। ता कुल तो शुद्ध बन गया। हैगा घरेलू है बनाना भी घरेलू है कोई चेंज नहीं। ता ऊपर अपना आंसर आया सी 1400 एंड जो घिसावट खर्च 10 देता है माइनस कर दो तो 1390 अपना जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ता इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मतलब एक टाइम पे एक ही विधि दियां रकमां जड़ियां ने वो दिमाग विच रहनियां चाहिए ने। तां ये मैं तुहानू न्यूमेरिकल देन लग्या। तां सब तो पहला आपां दिता होया है निजी अंतिम उपभोग खर्च
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 350। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी निर्माण है अपने कोल 70। नंबर 4 पे है अपने कोल आरंभिक स्टॉक, मतलब अपना शुरुआत में स्टॉक कितना सी ओ सी 15। फिर है अपने कोल कर्मचारियां दा मेहनताना, जो कि है अपने कोल 250। फिर है अपने कोल अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक का मतलब की आखिर में स्टॉक कितना से, तो आखिर स्टॉक से अपने कोल 25। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। देखो कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है, मतलब आ स्टॉक च बदलाव ऐड करना है। स्टॉक कितने का बदलिया, देखो शुरुआत में पिया सी 15 का, आखिर च पिया 25 का, कितना बदलिया 10 का। की करांगे अंतिम स्टॉक प्लस करांगे, आरंभिक स्टॉक माइनस करांगे। फिर नंबर 7 पे आपका दिता गया है सरकारी अंतिम उपभोग खर्च, जिहड़ा की है 100। फिर है अपने कोल प्रचालन बेशी, जिहड़ी की है 200। फिर है अपने कोल घिसावट, जिहड़ी की है 10। फिर है अपने कोल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिन्हें 25। फिर है विदिशा तो शुद्ध साधन आमदन, जिहड़ी की है -5। फिर ने अपने कोल निर्यात, जिहड़े की ने 10 ते लास्ट ते ने अपने कोल आयात, जिहड़े की ने 20। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਅਲੱਗ ਲਗਾਓ, ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਅਲੱਗ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। यानी आपा की निकालना है, आपा निकालना है साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। आपा एक चीज निकालना है। हुण इहदे जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैं कहती कि विधि जिहड़ी मर्जी लगा लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब हुण तुसी चाहे ता आमदन विधि द्वारा राष्ट्रीय आमदन निकालो, चाहे खर्च विधि द्वारा राष्ट्रीय आमदन निकालो, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 480। 480 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 480 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਇਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ घरेलू आमदन, ठीक है, सिर्फ घरेलू आमदन लिखा है, साधन लागत ते है कि बाजार कीमत ते है नहीं पता, कुल है कि शुद्ध है नहीं पता। हुण आपां ये देखना है कि जिहड़ी आपां नूं विधि दित्ती गई है वो किहड़ी है। जे तां ये विधि आपां दित्ती है आमदन विधि, आमदन विधि दी रकमां लिखी है, सीधा लिखा है घरेलू आमदन, हो कुछ नहीं लिखा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा भी आमदन कितों हुंदी है, उत्पादन दे साधनां नूं, जो आंसर आएगा किहदे ते आएगा साधन लागत ते। आमदन विधि दी रकम है, आमदन भी हुंदी है शुद्ध, तां घरेलू दा आपां दित्ता ही होया, तां आपां निकालांगे साधन लागत ते शुद्ध घरेलू आमदन या उत्पादन। पर अगर सोचो भी तुहानू दित्ती हुई है खर्च विधि, रकमां सारियां खर्च विधि दियां ने, तुहानू कहंदा है भी घरेलू उत्पादन निकालो। हुण इत्थे भी मेंशन नहीं हैगा भी साधन लागत ते निकालना है कि बाजार कीमत ते निकालना है, कुल निकालना है कि शुद्ध निकालना है, नहीं पता। पर जिहड़ियां रकमां ने वो किने वो खर्च विधि दियां ने। हुण फिर अपना दिमाग लगेगा कि आपां खर्चा करना है,
ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ घरेलू आमदन क्या है डिपेंड करेगा भी हम साधन लागत से निकालना है कि बाजार कीमत से निकालना है, शुद्ध निकालना है कि कुल निकालना है। ये डिपेंड करेगा कि जो घरेलू आमदन या घरेलू उत्पादन किया गया है उन्होंने निकालने वास्ते जी रकम दी गई है वो केड़ी दी गई है, वो आमदन विधि दी है कि खर्च विधि दी है। जेता आमदन विधि दी है फिर क्या होएगा, आमदन हमेशा उत्पादन के साधन होनी है, तो जो आंसर कढना है साधन लागत ते कढना है। आमदन हमेशा शुद्ध होती है ते घरेलू आपां नूं दिता हुआ है, पर जे खर्चा आ जाए तो खर्चा हमेशा बाजार कीमत ते हुंदा है, खर्चा हमेशा कुल हुंदा है, घरेलू आपां नूं ऑलरेडी दिता गया है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਧੀ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ, व्यक्तिगत खर्च करने योग आमदन, राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन। ते अपने लेक्चर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।